Today we start 8.1. In chapter 4, question number 4, cot theta equals to 15, cot theta 15 equals to A, and then find the sin A and sec A. So we have this formula cot theta, and cot theta formula is based upon perpendicular. Already we taught you. Just we use the one figure A, B, C. Cot. What is the formula of cot? So there is cot theta's formula is that based upon perpendicular. What is based upon perpendicular? Already we know that this is the base and this one is the perpendicular and this is the height, hypotenuse. What is the base? In that given question you will see, given question cot 15 equals to 8. Then cot is removed in front side. फ्रंट मतलब बेटा आगे की तरफ उसको निकालते हैं. जैसे आगे निकालते हैं तो 15 क्या हो जाएगी बिलो टू पावर 15 by 8. This is your cot. And what is the formula of cot? B by P. Then we should use P equals to 15 and base equals to 8. Now we use that base. What is the perpendicular 15 and base will be 8. Then what? Find hypotenuse. Then we use the Pythagoras formula. And Pythagoras formula we use directly Paco and use AC square. AC square means hypotenuse. Otherwise the perpendicular AC square, sorry AB square plus BC square. And what is the AC square? Not given to here. Just we want to find. But perpendicular also given AB is 15 square and BC equals to 80 square. What is the value of 15 square? Then we use 15 multiplied by 15 because I have 2 square, and also 8 multiplied by 8 because that is a square. Now we use what is the multiple of 15 into 15? Then we have to get 2 to 5 and also we find 64. Both are adding. Then we have to get 2, 8, 9 and AC square, also AC square because this is the AC square. Now AC square is अगर इसको बेटा हम लोग हटा देते हैं तो ये रूट में आ जाता है. तो 2, 8, 9 रूट में आ जाता है. अब इसका रूट बाहर निकल तो क्या होगा 17 मल्टीपल 17 और 17 मल्टीपल 17 इसको वन टाइम बाहर निकाल दिया जाता है तो हमारा 17 आंसर है. तो S इक्वल टू व्हाट इज इट 70 है ना. अब हमें पूछा क्या sin A एंड sec A. जस्ट यूज व्हाट इज फार्मूला sin A. sin का फार्मूला क्या है और sec का फार्मूला क्या है. जस्ट यूज हम लिखते हैं sin देख sin. तो sin का फार्मूला बेटा हमारे पास में परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस. So perpendicular upon hypotenuse. And what is the formula of other theta is the sec theta. And sec theta formula hypotenuse upon base. Sec theta का formula क्या बेटा हमारे पास hypotenuse upon base. अब जब directly we find this answer and how to find it? Just you see here on the figure. 70 hypotenuse, base A and perpendicular is the 50. Then what is the your formula sin A sin A. हम लोगों ने कहा था जब भी sin A की बात आती है तब हम उसके सामने की लेंथ को परपेंडिकुलर मानते हैं. इसके ऑपोजिट उसके जस्ट सामने देखो तो A के सामने कौन आ रहा है 8 आ रहा है. तो 8 अपॉन 70 हो गया. व्हाट इज योर आंसर 8 by 70 because hypotenuse is 70 and perpendicular will be 8. And like that sec theta and sec A. Just use sec A. sec का फॉर्मूला बेटा फॉर्मूला हाइपोटेनस अपॉन बेस. sec को A से देखो बेटा. अगर sec को A से देखा जाता है तो इसके बाजू वाली लेंथ और हाइपोटेनस आता है. तो इसके बाजू में कौन आ गया 15 by 70. तो व्हाट इज योर आंसर 15 by 70. दिस इज योर आंसर. क्वेश्चन विल कंप्लीट. नाउ यू सी दैट क्वेश्चन नंबर 5. क्वेश्चन नंबर 5 है sec इक्वल्स टू 30 by 12. Then find the all angles. तो हमें यहाँ पर टोटल एंगल्स फाइंड करने के लिए बोले. टोटल एंगल्स फाइंड करने हैं.
अब कैसे करेंगे देखो, अब हमें सबसे पहले क्या देगा, सेक देगा। तो सबसे पहले बेटा फिगर डिनोटेड मत करो, अब डायरेक्टली सेक का फॉर्मूला लिखो कि व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ सेक थीटा। तो सेक का फॉर्मूला होता है बेटा हाइपोटेनस अपॉन बेस होता है, ऑलरेडी कितना होता है। अब नाउ यू अरेंज by the figure always becomes to like that, BC है ना। what is the hypotenuse and perpendicular base? now what is hypotenuse, just you see that here 13 by, इसको as it is condition ऐसे कैसा उठा करके यहाँ पे लिख दीजिए, ध्यान करो 13 by 12। तो what is your hypotenuse 13 and base will be 12। now use that hypotenuse is 13 and base will be 12। now we want to BC। हमारे पास बेटा बेस नहीं है, क्या नहीं है, बेस। और अगर हमें बेस फाइंड करना है तो वापस देखो, हमने कल भी बोला था कि हमारे पास 3 लेंथ होती है ट्रिग्नोमेट्री में, कोई भी 2 लेंथ में से अगर एक लेंथ नहीं दे रखी है तो हमें क्या करना होता है, पाइथागोरस यूज करना होता है। तो नाउ वी यूज द पाइथागोरस ऑन हियर। तो पाइथागोरस क्या आएगा बेटा, AC² इक्वल टू में AB² plus BC², also like that previous questions है ना। अब AC equals to what is it, AC equals to 30 square है ना, 30 square। what is it, AB 12 square and BC not given। we want to find the BC, then we, yes, BC going to in front side, BC going to front side, then 13 square minus 12 है ना। साइन विल बी चेंज बिकॉज वो चेंज हो, क्योंकि आगे और पीछे होने के कारण से साइन चेंज हो जाती है, इक्वल्स टू के अक्रॉस होने के कारण। अब देखो BC² इक्वल्स टू 169 माइनस 144, इन दोनों में क्या हो जाएगा, साइन को क्या दिख रही है माइनस, देन सब्ट्रैक्ट। तो 169 सब्ट्रैक्ट बाय 140, देन वी हैव टू गेट 25। अब BC पे बेटा अगर हम लोग स्क्वायर को हटा देते हैं तो 25 गोइंग इनटू दैट रूट, वो किस में चले जाएंगे बेटा, रूट में चले जाएंगे। एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 25 रूट, so then we use to 5 into 5 2 times and always becomes to outside in 5। this is your answer, this is first answer, this base is will be 5, the base will be 5। और now for quite questions, अब तुमने ये तो हमने फाइंड कर दिया कि वन लेंथ फीमेल था, हमने फाइंड किया। अब क्या हम पूछने क्या पड़ा, उसने कहा कि then find all angles, then find all angles means बेटा all angles कितने, 6 एंगल्स है हमारे पास। तो बेटा तो कौन कौन से, sin थीटा है हमारे पास, फिर क्या है बेटा cos थीटा है हमारे पास, फिर क्या है हमारे पास बेटा tan थीटा है ना। हमारे पास पूरे 6 मतलब इतने थीटा है। अब इसके ऑपोजिट मैंने ऑलरेडी बोला था बेटा tan। तो देखो इसका cos दिखा sin थीटा, sin का फॉर्मूला क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइट, तो लिख दीजिए परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, सॉरी, और cos का क्या है बेटा, तो बेस अपॉन हाइपोटेनस, और इसी तरह tan का क्या है बेटा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। नाउ यूज आंसर, देखो व्हाट इज द परपेंडिकुलर, तो देखो परपेंडिकुलर का 12 है, हाइपोटेनस 13 है, तो 12 बाय 13 कर लीजिए आप इधर, क्या कर लोगे 12 अपॉन 13 हो गया। सब लगा दियो हाइपोटेनस 13, देखो हाइपोटेनस 13 लिख रहा है, तो हाइपोटेनस 13 लिख दिया, बेस क्या बेटा आपके पास, बेस 5, then use the 5, and now here perpendicular what is 5 and sorry perpendicular is 12 and base 5, then perpendicular 12 base 5, 3 theta, now 3 are remains, cosec theta, sec theta and cot theta। now we use cosec theta, बेटा ऑलरेडी मैं बता चुका था आपको कि cosec theta जो होता है, cosec थीटा जो होता है वो ऑपोजिट होता है किसका, साइन का ऑपोजिट होता है। तो h अपॉन p, तो आंसर क्या आ जाएगा 13 by 12, 13 by 12 हो गया। मैंने ऑलरेडी आपको कहा है कि cos का उल्टा sec थीटा होता है, कौन सा होता है sec थीटा। तो sec थीटा का फॉर्मूला क्या होगा, h ऑपोजिट हुआ ना बेटा, तो क्या होगा हाइपोटेनस अपॉन बेस, तो हाइपोटेनस अपॉन बेस मतलब हाइपोटेनस क्या है 13 और 13 by 5। समझ गए, cot थीटा, तो cot का बेटा क्या बोला था मैंने आपको, cot का फॉर्मूला बेस अपॉन हाइपोटेनस, क्योंकि ये भी ऑपोजिट हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो क्या हो जाएगा बेटा 5 by 12। इस तरह से देखिए आप एक चीज देख लेना, ये भी नोटिस करना आपको
कि जब भी कोई भी क्वेश्चन हमें दे रखा है और सभी थीटा से रिलेटेड दे रखा है तो हमें यही एक बात याद रखनी है। ये फॉर्मेशन में आपको फिर से बता देता हूं, sin थीटा, cos थीटा एंड tan थीटा। ऊपर से देखते हैं बेटा तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइट होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है और बेस अपॉन परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। अगर इसको उल्टा देख लो तो ये कोसेक हो जाता है, इसका साइन का उल्टा कोसेक। देख लीजिए आप ऑपोजिट हो गया, cos का उल्टा sec ऑपोजिट हो गया। इस तरह से अपने को सब क्वेश्चन सॉल्यूशन करना है।